So we'll start with new chapter today, that is dual nature of radiation and matter. What do you understand by dual nature of radiation and matter is radiation behaves as if it is wave under some circumstances, some conditions, and it behaves as if it is particle under some conditions. But both the natures simultaneously cannot occur. तो रेडिएशन या तो वेव होगा या रेडिएशन पार्टिकल होगा, बट नॉट both at the same time. Same goes with matter. Matter will be either particle or it will be wave, but not both at the same time. अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस बिहेवियर को आप बोलते हो वेव बिहेवियर, किसको बोलते हो पार्टिकल बिहेवियर. तो फिजिक्स में देयर आर फ्यू फेनोमेना which is always related to, which is a property of wave. Example, interference, polarization, diffraction, reflection, refraction. ये सारे के सारे strictly wave properties होते हैं. Then there are few properties which are strictly particle properties. जैसे particles can collide. So collision is a property of particle. जैसे particles can scatter. For example, what happens if you have one electron coming toward near to another electron? There will be scattering, मतलब change of direction. तो scattering या collision it is strictly particle property. मतलब जो कुछ भी अगर उसका scattering हो रहा है या उसका collision हो रहा है तो that thing we can call as particle. If something is showing interference, we can say that thing is wave. तो ये याद रखना. So what is dual nature of radiation and matter? There are some experiments in physics which basically show that radiation, which is normally considered as wave, also has particle behavior. तो दो famous experiments थे. एक था photoelectric effect और दूसरा था Compton scattering. राइट. तो कॉम्पटन स्कैटरिंग हम डिटेल में नहीं देखने वाले, जस्ट रफ आइडिया दैट यू नीड टू नो. तो यू हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड waves are scattered when they interact with electrons. इसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग. कौन से वेव्स? एक्स-रेज. So whenever X-rays they interact with electrons, they scatter, मतलब they change direction. That is called as Compton scattering. दूसरा है photoelectric effect. तो photoelectric effect में क्या है? Basically, you have a surface of metal. When light of suitable frequency, मतलब when photons of suitable frequency are incident on this metal surface, electrons are emitted from this surface. तो ये था photon. And you have electrons, and because these electrons are emitted due to photons, these are called as photoelectrons. Photoelectrons. Okay, so you should remember this. Each word is important. When photons of suitable frequency, कोई भी photon नहीं चलेगा. Photons must have some particular amount of energy, या उतना या उससे ज्यादा. But you know, energy of photon is decided by frequency. That is why I said when photons of suitable frequency are incident on a metal surface, then there is emission of electrons from that surface, and these electrons are called as photoelectrons, right? And the effect is called as photoelectric effect. Good. Ab, to study photoelectric effect in detail, there is an experimental setup given by Heinrich Hertz, if I'm not wrong. Okay, तो उस experiment में क्या था? And of course you should know. Normally ये जो plate होता है, it is metal plate, and this metal plate is emitting electrons only when photons are
इंसिडेंट ऑन इट, तो इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट. Photosensitive plate because it will emit electrons only when photons are incident on it. Otherwise, because this is emitting electrons, इसको हम लोग emitter plate भी बोलते हैं. So you have emitter plate. Okay. Then to study photoelectric effect, there is an experimental setup which you should know in detail. क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे वी ऑल्सो एक्सपेक्ट सम ग्राफिकल क्वेश्चंस, तो आपको ग्राफ पता होने चाहिए. एंड व्हाट यू हैव इज आपके पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है. एंड व्हाई इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम, इसके अंदर कोई और गैस पार्टिकल नहीं है. देयर इज नथिंग इनसाइड. व्हाई नॉट? सी व्हाट विल हैपन इज, बताता हूं मैं ऐसा क्यों. सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव प्लेट से, मतलब मेटल प्लेट से. मतलब कौन सा प्लेट? इमिटर प्लेट. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव इमिटर प्लेट. तो लेट अस हैव इमिटर प्लेट ओवर हियर. यहाँ पे एक इमिटर प्लेट है. अब इमिटर प्लेट कब इमिट करेगा? जब फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे. तो यू विल नीड टू हैव अ सोर्स ऑफ फोटॉन्स. तो लेट मी पुट अ सोर्स ऑफ फोटॉन हियर, एस. अभी जो सोर्स ऑफ फोटॉन है, इसमें से फोटॉन्स ट्यूब के अंदर जाके इमिटर प्लेट पे स्ट्राइक होने चाहिए. तो यू विल नीड टू क्रिएट अ वे फॉर फोटॉन्स टू एंटर. तो यहां पे आप एक बनाते हो विंडो. You make a window over here so that the photons from this source can come and strike the metal surface, emitter plate. और क्योंकि ये प्लेट इमिट करेगा तो इसको बोल दिया हमने इमिटर प्लेट E. करेक्ट. अब ये जो विंडो है, दिस इज क्वार्ट्ज विंडो. क्योंकि क्वार्ट्ज विंडो एक्ट एज वन वे ट्रैफिक for photons. It will just allow photons to come inside and will not allow photons to go out again after reflection, right? Then what happens is, यहां से photons आए, यहां पे metal plate पे वो strike हुए, electrons are generated. But how do you know electrons are generated or not? नहीं पता हमको. फिर क्या करेंगे? कैसे पता लगेगा? Electrons मतलब charges, negative charges. अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को एक सर्किट में भेज पाए, हम वहां पे एमीटर लगा के करंट मेजर कर सकते हैं. करंट मिल गया मतलब यस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. तो यू नीड अ प्लेट टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी कॉल्ड एज कलेक्टर प्लेट सी. अब मतलब द थिंग इज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए इमिटर प्लेट से, दे हैव टू रीच कलेक्टर प्लेट. And that's why you need evacuated tube. Evacuated tube मतलब all the gas is taken out from here. Why? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो ऐसा हो सकता था जो आपका पुराने जमाने में, पुराना जमाना मतलब अभी भी मिलता है वो, this tube light that you have, not LED, गैस ट्यूब्स, राइट, जिसमें आप इनर्ट गैसेस भरते हो. तो यू शुड नो, उसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं. व्हाट इज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब? हाउ इट वर्क्स? तो यू हैव ट्यूब्स, एंड देयर आर इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं और इसमें होता है अंदर गैस. इनर्ट गैस होता है नॉर्मली. और आपको पता है इनर्ट गैस में उनका वैलेंसी तो फुल है, राइट? बट स्टिल इमेजिन यू हैव दिस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट. ऊपर का खाली है, शेल है लेकिन खाली है. तो डिस्चार्ज होना मतलब क्या? डिस्चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क जाना, मतलब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
तो व्हेन यू स्विच इट ऑन, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और यहां पे गए, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। अब ऐसा हो सकता था कि इन बिटवीन ही कोलिजन हो गया, इन बिटवीन कोलिजन हो गया। कोलिजन हो गया मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन ने, किसका इलेक्ट्रॉन, एटम का इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन ने ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम था इसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और ये चले गया ऊपर, फिर वे वापस नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर का जो स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन विल गो बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट एंड व्हाइल डूइंग सो इट इमिट्स फोटोन। तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो गया गया, वो एनर्जी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे केस में व्हाट वी विल हैव इज, हमारे केस में ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, हमको पता करना है कि सच में ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे कि नहीं। बीच में गैस होता तो वो गैस इसका एनर्जी यूज कर लेता और वो ऊपर चले जाता इलेक्ट्रॉन, फिर डी एक्साइटेशन के वक्त वो फोटोन इमिट करता, मतलब इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा ही नहीं कलेक्टर प्लेट तक, तो हाउ विल यू मेजर करंट? So that is why it is evacuated, all the gas is taken out. Then obviously मैं complete circuit draw नहीं करने वाला हूं, but you need to know obviously electrons को collector plate पे जाना है, तो इसका मतलब you have to maintain a potential difference. You have to keep emitter plate at some potential and collector plate at some potential. Normally collector plate is kept at positive potential with respect to emitter plate. Normally बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। Normally collector plate is at positive potential. अब एक चीज समझ लो, जनरल कंफ्यूजन, पॉजिटिव पोटेंशियल से मेरा मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि इमिटर प्लेट माइनस होगा और कलेक्टर प्लेट प्लस होगा तभी आप पॉजिटिव बोलोगे। नो 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 नो, you may have this, emitter plate is at +1 volt and collector plate is at +2 volt. Even then collector plate will be called as at positive potential with respect to emitter plate, क्योंकि emitter का potential ये कम है compared to collector। ऐसा भी हो सकता है कि ये जीरो ही हो गया, emitter plate is at 0 potential and collector is at +2, so collector plate is at positive potential with respect to emitter. The moment I make collector plate negative, then you say collector plate is at negative potential. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब हम स्टडी करते हैं तो नॉर्मली इमिटर प्लेट को रखा जाता है 0 पोटेंशियल पे और कलेक्टर प्लेट इज केप्ट एट ईदर एट पॉजिटिव पोटेंशियल और एट नेगेटिव पोटेंशियल। अब why I am repeating this? Because ग्राफ पता होना चाहिए। Now potential difference अपने आप तो आएगा नहीं, अपने आप आएगा क्या? नहीं, you have to apply। तो here नीचे मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ बताने वाला हूं कि नीचे क्या क्या है। नीचे एक तो होगा पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि कलेक्टर प्लेट को आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, मतलब आप उसका पोटेंशियल चेंज करोगे, तो पोटेंशियल चेंज करने के लिए होता है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, जिसपे एक रियोस्टैट या फिर एक स्लाइडर होता है। तो व्हेन यू स्लाइड पॉइंटर को जैसे चेंज किया, स्लाइड किया, तो पोटेंशियल हो गया चेंज। अब पोटेंशियल चेंज हुआ कि नहीं और कितना अप्लाई करना था उतना मिला कि नहीं, वो मेजर तो करना पड़ेगा ना। तो मेजर करने के लिए होता है एक वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर कभी भी पैरेलल में लगता है कि नहीं, इमीटर और कलेक्टर प्लेट के बीच में पैरेलल में, नहीं तो ऐसा लगा दिया इधर, इट इज ऑलवेज इन पैरेलल, करेक्ट। तो नीचे यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर है, हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया वो मेजर करने के लिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। इलेक्ट्रॉन्स, इमीटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो कलेक्टर प्लेट तक आए, कलेक्टर प्लेट ने कलेक्ट किया, सर्किट में भेज दिया,
तो मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए क्या चाहिए? एक एमीटर, एक्चुअली माइक्रो एमीटर, बिकॉज current is in the range of micro ampere. Okay, then there is a commutator key here. You have a commutator key arrangement. Why? Because as I told you, ये जो collector plate है, sometimes you may want to keep it at negative potential with respect to emitter plate. जैसे -2 वोल्ट पे रख दिया, emitter कितने पे था? 0 पे। इमीटर प्लेट को हमेशा किस पे रखोगे? 0 पे। कलेक्टर प्लेट को क्या करोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू इमीटर प्लेट। तो ये जब आपको पोलैरिटी चेंज करना होता है, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव या नेगेटिव करना होता है, तो की को स्विच करते हो आप, कम्यूट करते हो बेसिकली। कम्यूट मतलब स्विचिंग। तो दैट इज व्हाई यू हैव अ कम्यूटेटर की अरेंजमेंट। तो दिस इज द बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ स्टडी मतलब क्या? स्टडी मतलब अल्टीमेटली आप क्या करोगे? अल्टीमेटली तो आप करंट ही मेजर कर सकते हो, और तो कुछ मेजर कर नहीं सकते। यू कैन ओनली मेजर करंट जनरेटेड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट वी विल डू इज वन बाय वन, याद रखना y एक्सिस इज नाउ रिजर्व फॉर पीसीबी, फोटो करंट। इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, इसको फोटो करंट भी बोलते हैं। एंड एक्स एक्सिस इज अ वेरिएबल दैट यू कैन चेंज। व्हाट यू कैन चेंज? यू कैन चेंज थ्री थिंग्स। एक, यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच फोटोन हैज फ्रॉम दिस सोर्स। ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं, इसका एनर्जी, मतलब एनर्जी चेंज जैसे होता है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, बिकॉज E इक्वल टू एच न्यू। So you can change frequency, you can change intensity. Intensity का definition है amount of energy emitted by a source per unit time. अब ये भी थोड़ा confusion पहले से ही clear कर लो, क्योंकि ग्राफ इसी के लिए नहीं समझ में आते आपको, क्योंकि आपको इंटेंसिटी का मतलब ही नहीं समझ में आता। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक सोर्स है, अब बोलते हो ना आप, अगर मैंने दो बल्ब लगा दिए, एक ज्यादा ब्राइट है, एक कम ब्राइट है, तो आप बोलोगे जो ज्यादा ब्राइट है बोलते हो इट इज मोर इंटेंस, जो कम इट इज लेस इंटेंस, या फिर बोलते हो इट इज मोर ब्राइट इज लेस ब्राइट। बट देन ऑफ कोर्स लॉजिकली यू नो कि जो ज्यादा इंटेंस है इट इज इमिटिंग मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी इमिट कर रहा है। जो लेस इंटेंस है इट इज इमिटिंग लेस एनर्जी पर यूनिट टाइम। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट? अब energy per unit time, basically intensity here that we are talking about is, imagine एक ही photon निकला, intensity is less. Maybe you have 2 photons, intensity is more. Maybe you have 3 photons, intensity is even more. You have 4 photons, intensity is even more. 5 photons, intensity is even more. तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ना, मतलब ईच फोटोन का एनर्जी बढ़ना नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाना है मतलब एनर्जी बढ़ाना है, और एनर्जी तो हम फोटोन की एनर्जी बढ़ा के भी कर सकते थे ना। E इक्वल टू एच नू, नू ही चेंज कर दिया, राइट? तो इंटेंसिटी भी चेंज होगा क्योंकि एनर्जी चेंज होगा। लेकिन इन दिस केस व्हेन यू टॉक अबाउट चेंज इन इंटेंसिटी, यू मीन बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय अ सोर्स। तीसरा वेरिएबल है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। मतलब बेसिकली वाई कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, दे शुड बी टेलिंग यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि इमीटर प्लेट को हमेशा रखते हैं 0 पोटेंशियल पे। तो अभी चेंज क्या करोगे? कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स दैट यू हैव, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो याद रखो तीनों में से 2 को कांस्टेंट रखा जाएगा। अगर मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखता हूं और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को मैं कांस्टेंट रखता हूं, और मैं वेरी करता हूं फ्रीक्वेंसी, एंड आई चेक व्हाट इज द करंट ऑब्टेन्ड, तो होगा ये कि इनिशियली यू विल नॉट गेट एनी करंट। फिर आप सोर्स के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, एंड देन सडनली यू स्टार्ट गेटिंग करंट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड
एनी इलेक्ट्रॉन कहां से फ्री होगा? इमिटर प्लेट से, मतलब इस प्लेट से, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट बताया रेड कलर में मैंने। इमेजिन दैट इन फोटोन, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, और जो इंसिडेंट फोटोन है उसके पास सिर्फ 8 eV एनर्जी है। तो इज दिस एनर्जी सफिशिएंट टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन? नो, तो देयर इज नो इमिशन। मतलब मुझे एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, किसका? फोटोन का। तो फोटोन का एनर्जी कैसे बढ़ाते हो? E इक्वल टू एच नू, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा। तो ऐसा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू सी सम करंट कमिंग। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे यू हैव इलेक्ट्रॉन्स just emitted, the frequency at which electrons are just emitted from the metal surface is called as threshold frequency. इसका मतलब if the frequency is less than threshold frequency, there is no emission. But also you know that frequency is inversely proportional to wavelength. मतलब if wavelength is greater than some wavelength which is called as threshold wavelength, there is no emission. अगर वेवलेंथ, अब देखो ये आपको तब समझेगा जब आपको बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन कहाँ प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियस के अंदर। फिर किसका होता है? एक्सरे। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आप एक टारगेट लेते हो, टारगेट मतलब मेटल टारगेट लाइक कॉपर, और उस पर आप हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हो। ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स अंदर के शेल तक पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है किसका? टारगेट का। टारगेट कौन था? कॉपर। मतलब पहले ही ऑर्बिट में वैलेंसी, मतलब वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? वो वैकेंसी को फिल तो करना है, तो ट्रांजिशन होगा। कहां से? ऊपर के ऑर्बिट से, सेकेंड टू फर्स्ट, थर्ड टू फर्स्ट। तो दिस एनर्जी इज वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम नहीं है ये, दिस इज कॉपर, राइट? तो whenever transition is taking place from second to first orbit, you have emission of photon, and that photon is called as X photon, Roentgen rays, X rays, highly energetic, harmful to human beings. Okay, then you have ultraviolet. Ultraviolet में भी something like this happens, but इस केस में अल्ट्रावायलेट में जब अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट होते हैं तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो रहे हैं वो इनर से नहीं, वो आउटर ऑर्बिट से नॉकआउट हो रहे हैं। उसको फिल करने के लिए ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स नीचे ट्रांजिशन करेंगे। विजिबल के लिए भी ऐसा ही होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे बेसिकली गेट नॉकआउट, देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा ना हमने, ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1। ये आता है यूवी, कौन सा सीरीज? लिमेन। फिर 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, बाल्मेर। बाल्मेर happens to be invisible, right? तो उसके बाद आता है इंफ्रारेड। विजिबल के बाद, यूवी के बाद विजिबल, विजिबल के बाद आईआर, और विजिबल इज विब्योर, स्टार्ट्स विद वायलेट एंड दैट रेड। वायलेट के नीचे अल्ट्रा, रेड के ऊपर इंफ्रा, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा, रेड। तो इफ यू सी द सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो व्हाट यू विल नोटिस इज, यू शुड नो दिस, wavelength is increasing, frequency is decreasing, hence energy is decreasing। तो सबसे कम एनर्जी होता है रेडियो वेव्स का, जो आप टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। तो यू शुड नो दिस। व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज एज आई टोल्ड यू, हमें देखना था हाउ फोटो करंट चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होना मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होना। जब तक फोटोन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू कम आउट। इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो कलेक्टर प्लेट के पास कुछ गया नहीं, जब वहां कुछ गया नहीं तो एमीटर में कुछ गया नहीं, तो करंट नहीं मिलेगा आपको। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी पे इमिशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी कम है तो इमिशन नहीं होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
तो वेवलेंथ अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है तो भी एनर्जी कम है, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. गुड. The next type of graph that you will see is this. PC, photocurrent against intensity. And when you talk about this graph, frequency and collector plate potential are constant. Obviously, increasing intensity means increasing number of photon. और यहाँ पे कंडीशन और है जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं. Each photon already has threshold frequency or more. नहीं तो फिर इमिशन कैसे होगा? तो ऑलरेडी फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर मेरे पास एक भी फोटोन नहीं होता, nothing is incident on emitter, no electron is emitted, no current is there. Very good. Ideal state 0 0. No intensity, no PC. You increase intensity. मैं सिर्फ आपको ये नंबर्स समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था इंटेंसिटी 1 मतलब एक फोटोन होता है. इमेजिन इंटेंसिटी 1 करस्पॉन्ड्स टू 1 फोटोन. 1 फोटोन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? मतलब इंटेंसिटी 1 तो करंट भी 1. तो यू हैव अ पॉइंट हियर 1 1. इंटेंसिटी 2 कर दिया तो 2 फोटोन तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर्किट में, तो करंट विल आल्सो इंक्रीज. तो 2 and 2. Similarly, if I increase the intensity further, if I have let's say if I have 3 photons, which means 3 photoelectrons, which means 3 electrons are reaching collector plate, which means you have current also 3. So 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 straight line passing through origin. So this is linear nature. Clear yahan tak? The next graph that you will need is, of course, variation of PC, photocurrent, with collector plate potential. So what you have is collector plate potential BC, keeping nu and I constant. ये बहुत important है. Then what happens here is, सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है, याद रखना मैंने पहले ही बता दिया था, इमिटर प्लेट इज मेंटेन्ड एट 0. कलेक्टर प्लेट अगर हमने 0 पर रख दिया तो प्रैक्टिकली देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, देयर इज नो रीजन फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू गो फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर प्लेट, मतलब यू शुड गेट 0 करंट. तो आइडिया ये था, ये 0 है, किसका 0 है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का. मैंने पहले ही बता दिया, हम पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट नहीं करते, हम क्या प्लॉट करते हैं? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, क्योंकि इमिटर हमने ऑलरेडी 0 पे रखा. इमिटर भी 0, कलेक्टर भी 0. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज 0 करंट, मतलब आपको ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए 0 0, नो करंट. लेकिन ऐसा होता नहीं है. यू स्टिल गेट नो, यू स्टिल गेट, ऑफ कोर्स you still get some current. And why do we get some current? Is because of 2 reasons. Of course, एक रीजन डोमिनेंट है, एक इतना डोमिनेंट नहीं है. एक रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये जो फोटॉन्स है तो कंटिन्यूसली आ रहे हैं. ऐसा तो नहीं बोल सकते रुको जरा, जगह नहीं है वहां पे, हम बाद में आएंगे. They are continuously coming, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग इमिटेड. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल जाएंगे कहाँ? या तो इमिटर के पास या तो कलेक्टर के पास. अब ऊपर से हमने एक चीज जो डिस्कस नहीं की, मैंने आपको बताया था कि सपोज 10 eV एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और मान लो फोटोन के पास 12 eV है. 10 eV कहाँ गया? टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, बराबर. बचा हुआ 2V कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है साथ में, बिकॉज पहला ही अजम्पशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज व्हिच नेचर ऑफ रेडिएशन? पार्टिकल. तो
कल मतलब फोटोन इज अ पार्टिकल, इट इज कोलाइडिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं होगा तुझे 10 चाहिए तो 10 दे, 2 मैं रख लेता हूँ, 12 तो 12, 10 is used to free and 2 is taken away by electron in the form of kinetic energy। तो यहाँ तो क्राउडिंग तो हुआ ही हुआ, एडिशनली काइनेटिक एनर्जी भी है, so they will start moving away from each other, and as they move away from each other they start drifting towards collector plate, and hence even when collector plate is at zero potential, even then you have current। अब वेरी ऑब्वियस, जीरो पे ही करंट मिल रहा है तो कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करोगे तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव कर दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे पर यूनिट टाइम, और करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इफ यू कीप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एट हायर मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, more and more electrons will reach and then you will get more and more current। फिर एक स्टेज के बाद आता है सैचुरेशन, मतलब नाउ even though you are increasing collector plate potential but the current is not going to increase now। Why not? Intensity is constant, मतलब number of photons incident per unit time is constant, मतलब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे तो 10 ही रहेंगे, डजंट मैटर आप 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दो, इफ यू पुट अ पोटेंशियल ऑफ 10,000 वोल्ट क्या फर्क पड़ता है, जब है ही 10 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम तो फिर अभी वो बोलेगा ठीक है मेरे पास सप्लाई लिमिटेड है, तू मांगते रहे, क्योंकि मैं आई हैव 10 आई विल गिव यू 10 पर सेकंड, राइट। So that is where it saturates because intensity was constant। Now what do we expect कि ठीक है अभी 0 और 0, चलो ठीक है कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन फिर हमने इसको नेगेटिव किया, अब हमारा एक्सपेक्टेशन होता है सीधा 0, नहीं होता सीधा 0, you still have some current। Why? Because the most energetic electrons will still reach। आपने सामने वाले प्लेट को नेगेटिव कर तो दिया, लेकिन अभी जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो तो फिर भी पहुंचेगा। अब यहाँ पे और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ज्यादा का क्वेश्चन कैसे आया, मटेरियल सेम था, फोटॉन सेम थे, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इमिट फ्री होने के लिए 10 eV चाहिए था, हर एक इलेक्ट्रॉन को 10 eV चाहिए था, हर एक फोटॉन के पास 12 eV है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 eV का काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तो फिर ऐसा कैसा होगा किसी के पास ज्यादा एनर्जी किसी के पास कम, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 थिंग्स, एक थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा वो, लेकिन समझ लो जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब होता है ना, तो डिपेंडिंग ऑन क्राउडिंग, अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा रिपल्शन है, तो वो भी एनर्जी चेंज करेगा। नंबर 2, हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि जो फोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियली ट्रू। सम फोटॉन्स पेनिट्रेट, क्योंकि जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक फ्री कैसा हो, तो सम photons penetrate inside the material। How much inside? नैनोमीटर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा अंदर से आ रहे हैं, और जो थोड़ा अंदर से आ रहे हैं तो वो बाहर आते वक्त एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। इसका मतलब सरफेस से जो आए उनका ज्यादा एनर्जी है, जो अंदर से उनका कम एनर्जी है। तो आपने नेगेटिव पोटेंशियल कर तो दिया, यू आर एक्सपेक्टिंग कि अभी एक भी नहीं पहुंचेगा, नो, बट सम इलेक्ट्रॉन स्टिल हैव एनर्जी। फिर आप क्या करोगे, और नेगेटिव करोगे, फिर जैसे नेगेटिव करोगे करंट कम होता जाएगा, करंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइनली देयर विल कम अ वैल्यू ऑफ potential, negative potential of collector plate, for which no electron reaches collector plate, that is called as stopping potential। all the electrons are stopped from reaching collector plate, right। ये सब आपने कब किया, by keeping intensity and frequency constant। now imagine I am repeating the same experiment। पहला हो गया, पहले जब किया तो दोनों कांस्टेंट थे, अब वापस मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा, दोनों कांस्टेंट ही रखूंगा, बट दिस टाइम आई विल इंक्रीज द इंटेंसिटी लिटिल बिट।
तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है, मतलब जो फोटोन था एक्सरे फोटोन था तो एक्सरे ही है, नो चेंज। पर पहले अगर 10 फोटॉन्स थे कोऑर्डिनेट टाइम अभी 20 हो गए, राइट। तो नाउ इंटेंसिटी व्हेन यू चेंज यू विल सी ये नेचर तो सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट इज डिसाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन व्हिच इज डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फोटोन, बट यू हैव नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, but what you have changed is intensity. So what you see is you see the same nature little bit shifted upwards. वापस रिपीट करोगे तो तीसरा ग्राफ मिलेगा। तीसरा ग्राफ आपको पिछला पीछे के साइड का नेचर तो सेम ही आने वाला है, पीछे तो सेम आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टिल यू गेट सम शिफ्ट। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब ऐसा करते हैं, हम सेम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, बट दिस टाइम वी विल चेंज फ्रीक्वेंसी, एंड चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज चेंजिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? इमेजिन पहले क्या था, पहले था 12 एवी फोटोन के पास, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में कितना लगा? 10, तो बच गया 2, इट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने फोटोन एनर्जी कर दिया 13, क्यों? क्योंकि क्या बढ़ाया आपने? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया मतलब क्या बढ़ाया? फोटोन का एनर्जी। फोटोन एनर्जी बढ़ाया तो 13 आ गया फोटोन का, फ्री होने के तो अभी भी 10 चाहिए, तो 3 इज लेफ्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद मोर काइनेटिक एनर्जी नाउ। तो इन दिस केस व्हाट यू विल सी इज कि ग्राफ का अगला नेचर तो लगभग सेम है, फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव पार्ट इज मोर और लेस द सेम, where it changes is in the value of stopping potential. So now more frequency implies more kinetic energy of electron, which means more stopping potential is required for electron to stop. Clear? Good yahan tak? Fine. So this is around 35%, even more, 35 नहीं, ये 60% the chapter is done, 60% is done. तो कल हम जो बचा हुआ 30-40% है वो 10 मिनट में होगा, and then we will start solving numericals.